بعد آپ کی پہچان نہ مسلمان ہے، نہ عیسائی ہے، نہ پارسی ہے، نہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے، آپ سب پاکستانی کہلائیں گے۔ مذاہب جو ہے ان کو انہوں نے پیچھے کیا اور کہا کہ آپ سب پاکستانی، آپ کی شناخت ہونی چاہیے۔ اسی بات کو لے کے میں چلا ہوں، اور اس میں پیس ریزیڈنشیا میں نے پورے پاکستان میجارٹی اور منارٹیز کو بالکل ایک برابر کی سطح پہ رکھ کے سوچتے ہوئے میں نے اس کا آغاز کیا۔ اور مجھے یاد ہے، اور آپ کو بھی تاریخ یاد ہوگی، کہ پاکستان کی جو منارٹیز ہیں، جس میں میجر منارٹی ہمارے کرسچن مسیح بھائی ہیں، ان کے پاکستان پہ بہت زیادہ احسانات ہیں۔ سب سے پہلا احسان باؤنڈری کمیشن کا جب فیصلہ ہو رہا تھا تو پاکستان کا بارڈر جو ہے وہ شادراہ سے شروع ہو رہا تھا، کیونکہ ہمارے ووٹ جو ہیں ان میں کچھ 2 ووٹس کی کمی تھی۔ تو دیوان بہادر ایس پی سنگا کاسٹنگ ووٹ اور چندو لال کے کاسٹنگ ووٹ سے پاکستان جو ہے اس کی سرحدیں جو ہیں وہ لاہور جو ہے وہ ہمارے حصے میں آیا، ادروائز ہمارا پاکستان جو ہے وہ شادراہ سے شروع ہونے جا رہا تھا۔ تو یہ ہمارے مسیح بھائیوں کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ پھر میں کیسے بھول سکتا تھا سیسل چودھری کو، میں کیسے بھول سکتا تھا مارشل کورٹ کو، اور اسی طرح سے بہت سارے ہیروز کو جنہوں نے پاکستان پہ اپنی جانیں قربان کی۔ تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ میں ویلکم کرتا ہوں سائمن سہوترا صاحب کو، اور میرے تمام جو ہے معزز جو ہے مسیح بھائی یہاں پہ موجود ہیں، پوری پاکستان کی نمائندگی یہاں پہ موجود ہے، اور ہم آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکانے جا رہے، ہم آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ اور آج باتیں ہوتی ہیں اسلامو فوبیا کی، یا پاکستان میں مذاہب کا جو ایک بٹوارا ہے اس کو ایک بین المذہب ہم آہنگی میں منتقل کرنے کی، تو یہ میری پہلی کاوش ہے کہ میں نے قائد اعظم کے اس ویژن کو لے کے چلا ہوں، اور ایک ایک چیز اس ریزیڈنشل جو ہم بنا رہے ہیں پیس ریزیڈنشیا، اس میں ایک ایک چیز آپ کو اس کی عکاس نظر آئے گی۔ یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے توجہ دی ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کو ہم نے سب سے بہتر کرنا ہے۔ اس میں ہم نے الحمدللہ، پھر احسان ہے آپ کا پیس ریزیڈنشیا پہ سائمن سہوترا صاحب، کہ آپ نے 3 سکول مجھے تعویذ کروا دیے، کہ جس میں جیزس اینڈ میری، سینٹ اینتھنی اور کانوینٹ جو ہے وہ حصہ بننے جا رہے ہیں پیس ریزیڈنشیا۔ اس کے بعد پورے سب کانٹیننٹ میں یہ جو چیفز کالج ہے، جس کو ہم ایچسن کالج بھی کہتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے تمام جو ہمارے فادرز ہیں، بشپس ہیں، ان سے میں نے مشورہ کیا، اور میں نے کہا کہ میں 500 کنال زمین بغیر آنا پائی لیے مختص کرتا ہوں ایچسن کالج کے لیے، اور ایچسن کالج بھی اس کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ اس 500 کنال زمین کے میوٹیشن چارجز میں اپنی گرہ سے ادا کروں گا، اس میں انفراسٹرکچر میں اپنی گرہ سے بناؤں گا، میں پیس ریزیڈنشیا پہ بوجھ نہیں بنوں گا، اور انشاءاللہ پوپ کی منظوری کے بعد ہم پہلی دفعہ پاکستان میں 75 سال کے بعد ایچسن کالج کو اس کا حصہ بنا رہے ہیں۔ اور پھر کل مجھے جنرل سلیم اسحاق صاحب نے کہا کہ پی اے ایف کالج سرگودا، ان کو اصغر خان صاحب نے ایفیلیٹڈ کیا تھا باہر کی یونیورسٹیوں اور اداروں کے ساتھ، آپ ہمیں پی اے ایف کالج سرگودا کے لیے بھی جگہ دیں۔ میں نے کہا جناب میری جان حاضر ہے، جتنی جگہ آپ کو ریکوائرڈ ہے میں بغیر پیسوں کے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے میں وہ بھی مختص کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہیلتھ سسٹم میں ہم جو ہیلتھ سٹی بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اس میں ہم نے 300 کنال زمین مختص کی ہے، جس میں ہم 26 سٹوری ورٹیکل ہاسپٹل جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم نے پہلی بار ایئر ایمبولینس سروس کو متعارف کروایا ہے۔ میں بات کو روک رہا ہوں کہ مجھے انتہائی آنریبل جناب عبدالحمید ڈوگر صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور ہم نے
यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक हॉस्पिटल दे रहे हैं जो 26 स्टोरी हॉस्पिटल होगा, और उसके साथ मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल स्टाफ इंस्टीट्यूट, उनकी रिहाइश गाहें, ये 300 कनाल पे, और 2 हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस जो अभी आपको यहाँ बताया गया, वो हम लीज कर चुके हैं। यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे गा गे गी बहुत इस्तेमाल होता है, हो जाएगा, कर देंगे, करेंगे, करेगी, ये नहीं है। हमने तमाम सिस्टम्स जो हैं उनको जो है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, जी मोस्ट वेलकम सर अब्दुल हमीद डोगर साहब तशरीफ ला चुके हैं। सर आप तशरीफ रखें। आप देख रहे हैं कि इंतहाई मोहतरम शख्सियात जो हैं वो पीस रेजिडेंशिया और यहाँ हमारी मोहब्बत में हमारे पास अपने कीमती वक्त निकाल के आई हैं, और सबसे ज़्यादा मशहूर हूँ मैं जनाब सन ऑफ द सॉइल जनाब जनरल गुल हमीद साहब, उनकी साहबजादी मेरी बहन जो है, आज पोते की सालगिरह थी तो उसको बस बच्चे को पोते को केक कटवा के तो सीधी इस तकरीब में आ गई हैं। उनके लिए ज़रा भरपूर। आज बिजनेस पार्टनर जो है वो मीटिंग या कन्वेंशन पीस रेजिडेंशिया के हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ है। उसमें हम पास्टर शौकत साहब से बात करेंगे कि ये जो यूनिक विजन है और कायद-ए-आज़म की अक़लियतों के हवाले से 11 अगस्त की तकरीर को लेके तो इसको ये अमली जामा पहनाने जा रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहते हैं जनाब पास्टर शौकत साहब? खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस के नाम में आप सबकी सलामती हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं पीस रेजिडेंशिया के ये जो बिज़नेस पार्टनर्स कन्वेंशन है इसमें मैं शरीक हुआ, और ये मेरे लिए वाकई एक बड़ा अजीब, ये मुझे लगा कि इतने सारे विजन्स जो CEO साहब को के जहन में खुदा ने डाले हैं, ये वाकई एक ख्वाब सा नज़र आता है। और बिलखुसूस जब हम कायद-ए-आज़म के विजन की बात करते हैं पाकिस्तान के लिए, जहाँ पर तमाम लोग मेजॉरिटी बिलखुसूस मिनॉरिटीज़ और मज़हब और जितने भी तबक़ात हैं वो सब मिलकर रहें और सबको बराबर का हिस्सा मिले, इंसाफ मिले, सब खुशहाल ज़िंदगी बसर करें, अमन के साथ रहें, पीस के साथ रहें। तो ये ख्वाब वाकई पाकिस्तान के अंदर हमें जो इसका प्रैक्टिकली हमें नज़र आया है, उसमें ख़ुसूसन जो मिनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं और जितने और छोटे तबक़ात के लोग हैं, उनके लिए वाकई पीस का जो लफ्ज़ है ये वैसे ही एक ख्वाब सा नज़र आता है। तो यहाँ पर जो पीस रेजिडेंशिया के जो CEO साहब हैं, उन्होंने जो ख्वाब देखा बिलखुसूस पीस के हवाले से कि जहाँ पर सारे लोग इकट्ठे रहें, और उनका जो स्लोगन है वी लिव इन पीस नॉट इन पीसेस। तो ये स्लोगन बहुत खूबसूरत है कि सब मिलकर इकट्ठे रहें, सब मिलकर एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों। और मेरी दुआ है कि खुदा ताला इस प्रोजेक्ट के जितने भी पार्टनर्स हैं और जितनी मैनेजमेंट है और जितने फाइनेंस को होल्ड करने वाले लोग हैं, उन सब को खुदा ताला अपने खौफ के नीचे रखे, और ताकि वो दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ और खुदगर्जी से बालातर होकर काम करने वाले ठहरे। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह पास्टर आइजक साहब, पास्टर आइजक डी सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी इस हवाले से बात करते हैं कि जो पीस रेजिडेंशिया ने जो है वो एक
यूनिक विजन दिया है कायद अज़म की 11 अगस्त की स्पीच को लेके, तो यहाँ पे ये तमाम जो है वो मजहबी इकाइयों को इकट्ठा करने जा रहे हैं और पाकिस्तान कायद अज़म का पाकिस्तान बाजियाब होने की बात हो रही है, तो आप इस पर क्या कहते हैं? जो आज का प्रोग्राम था वो इस रेजिडेंशिया ने मुनक़िद किया और कायद आज़म की 11 अगस्त की स्पीच को बेस बनाया गया और इस विजन पे पीस रेजिडेंशिया की बुनियाद रखी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शहजादा आलमगीर साहब ने इसके बारे में ब्रीफ किया। ये जानकर कि मिनॉरिटीज़ को इसमें काफ़ी ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, ख़ास तौर पर क्रिश्चियन मिनॉरिटी। मालूम हुआ आज इस तकरीब में शिरकत करके कि 3 मेजर स्कूल सिस्टम्स जो हैं उनका उसको यहाँ पर शुरू किया जाएगा, जैसे कॉन्वेंट स्कूल और जीसस एंड मैरी स्कूल। इस तरह फिर HSN कॉलेज के बारे में भी बताया गया और ख़ास तौर पर जो मुझे अच्छी बात लगी कि हमारे क्रिश्चियन हीरोज़ जो हैं उनके नाम पर अवार्ड जो है वो CEO साहब ने बताया कि हैं। और हमारे जो मसीही हीरोज़ हैं उनका तो तारीख़ में कहीं पर जिक्र नहीं मिलता। हमारे मसीही बच्चे जो हैं वो मसीही हीरोज़ के बारे में नहीं जानते क्योंकि तारीख़ में जिक्र नहीं। तो गैर मसीही लोग कैसे जाने कि मसीहियों का क्या रोल रहा पाकिस्तान के क़याम के दौरान। सो इस तरह से मसीहियों की खिदमत को और शहादतों को भी और खिदमत को भी फरामोश किया गया, तारीख़ में मस्क किया गया। लेकिन शहजादा आलमगीर साहब ने इस रेजिडेंशिया के वसीला से जो मिनॉरिटीज़ की खिदमत हैं उनका एतराफ़ करते हुए हीरोज़ के नाम पर पीस रेजिडेंशिया के जो मेन रोड्स हैं उनको मंसूब किया गया। तो इसके लिए हमें बड़ी खुशी हुई और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो चर्चेज़ हैं उनके लिए भी वो एक जगह देंगे, ख़ास तौर पे कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च। और मैंने देखा है कि बहरिया बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान में उसका नाम है, लेकिन अभी तक सुनने में नहीं आया कि बहरिया में चर्चेज़ के लिए कोई जगह दी हो या चर्च बनाया हो। तो ये इस लिहाज से मुनफरद है। मुझे तो ऐसा ही लगा जैसे मिनॉरिटीज़ के लिए यहाँ खास तौर पर मुस्लिमों के लिए एक मिशन के तहत ये काम शुरू किया गया। अल्लाह ताला इनको इस पर अमल पैरा होने के लिए तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। आप मास्क उतार के आ सकते हैं, आप मास्क उतार के आगे आ सकते हैं। गुड डे। Pastor George Stephen. फिलहाल Pastor George Stephen. जॉर्ज चलें। अभी हम पास्टर जॉर्ज स्टीफन साहब के साथ मौजूद हैं। तो इनसे भी पीस रेजिडेंशिया के हवाले से बात करेंगे कि उन्होंने जो एक यूनिक आइडिया दिया है कायद आज़म के विजन को लेके, 11 अगस्त की स्पीच को लेके, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? पीस सोसाइटी जो बात की तरफ आइश हो रही है और प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान में ये पहला वो प्रोजेक्ट है शुरू पर देखिए जिसके अंदर मिनॉरिटीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट जगह दी गई है, जिसमें चर्चेस हैं, स्कूल्स हैं और सबसे बड़ी बात कि ब्लॉक्स के अंदर जितने भी स्ट्रीट नेम्स या स्कूल्स या इसके अलावा मिनॉरिटी के लिए जो भी वर्किंग की गई है वो तमाम पाकिस्तान
हीरोज़ के नाम पे है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि एचिसन कॉलेज, कॉन्वेंट स्कूल, अंथोनी स्कूल्स, ये वहाँ पर वो बनाने जा रहे हैं। काज़ी आज़म के वो 11 सबक के वो उस प्रोग्राम को, उस स्पीच को जब हम देखते हैं कि आज तक किसी हुकूमत ने या सोसाइटी ने या टाउन ने इतना बड़ा काम नहीं किया जितना बड़ा काम शहज़ादा आलमगीर साहब ने किया है। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे और मैं चाहता हूँ कि उनके वसीला से जितना बड़ा मिनॉरिटीज़ के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, मैं भी शायद काज़ी आज़म के बाद किसी भी शख्स ने ना तो हुकूमती सतह पे, ना ही टाउनशिप पे, ना सोसाइटीशिप पे इतना बड़ा काम मिनॉरिटी के लिए नहीं किया जितना बड़ा काम शहज़ादा आलमगीर ने। हम शाने बिछाने पीस रेजिडेंस और शहज़ादा आलमगीर साहब की पूरी टीम मैनेजमेंट के साथ शाना बिछाना खड़े हैं। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उनको अपने पाक बनाम में संभाल के रखे, उनको तरक्की और खुशहाली अता करे और इस सारे प्रोजेक्ट को खुदा यसुमसी के वसीला से ये पाए तकमील तक पहुँचे, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक वाहिद मसाली प्रोजेक्ट है। और मैं एज ए ख़ादम होते हुए तमाम पाकिस्तान के नसीबों को कहूँगा कि वो इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लें, यहाँ पे अपने प्लॉट्स परचेज करें और सोत्रा साहब, सैमन सोत्रा साहब के साथ वो राब्ते में रहें ताकि हम सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को वाई तकमील कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मैं इल्तमास करूँगा पास्टर साइमन शहजाद साहब से कि आप पीस रेजिडेंशिया के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। आज जो इसके CEO शहज़ादा आलमगीर साहब ने एक यूनिक विजन दिया है कायद आज़म की 11 अगस्त की स्पीच को लेके, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं जनाब पास्टर साइमन शहजाद साहब? खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुदस में मेरी तमाम कलीसिया है उनको सलाम। ये आज हम रावलपिंडी इसी में एक इवेंट था, पीस रेजिडेंशिया के सिविल सोसाइटी है जो लॉन्च होने जा रही है। ये एक वाहिद सोसाइटी है जिन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए ज़्यादा से रेजिडेंशियल ब्लॉक्स, चर्चेस, 3 चर्चेस का इन्होंने ऐलान किया है कि हम बनाएंगे और हमारी पूरी कौम की नुमाइंदगी जो है खुदा ने चाहा तो यहाँ पर नजर आएगी। तो मेरी तमाम दोस्तों से, फैमिली से रिक्वेस्ट है कि अगर आप विज़िट करें, आप जगह को देखें, लोकेशन को देखें, ये बहुत ही एक आला किस्म की सोसाइटी है। पाकिस्तान में इस लेवल की कोई सोसाइटी नहीं है और आप विज़िट करें और देखें, अगर आप समझते हैं उनको जगह पे जाकर आप समझते हैं कि ये इस लायक है, इस काबिल है, तो ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट करें, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें, क्योंकि ये पीस के नाम पे है तो यहाँ पर सबको बराबरी हासिल है। और आप हमारे तमाम तर जितने मिशन स्कूल हैं वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे, बनाए जाएंगे और स्पेशली हमारे जितने क्रिश्चियन हीरोज़ हैं उनके नाम पर ब्लॉक्स बनेंगे, रोड के नाम बनेंगे, लाइब्रेरी बनेगी जहाँ पर उनकी तस्वीर अवेज़ा होंगी और उनकी हिस्ट्री, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को जो है उनके बारे में जो है ना वो पता चल सके कि हमारे कौन से हीरो। तो मेरी पीस रेजिडेंशिया के लिए भी दुआ है तो खुदा इस सोसाइटी को हमेशा कायम रखे, खुदा बाप और खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से आमीन। अभी हम इल्तमास करेंगे बिशप रियान साहब से कि आप यहाँ पे हमारे साथ शावर से बिशप रियान साहब मौजूद हैं। आप भी इस पीस रेजिडेंशिया के हवाले से और ख़ास तौर पे इन्होंने जो विजन दी है कायद आज़म की 11 अगस्त की स्पीच को लेके, उसको ये अमली तौर पे जो है वो विजनरी या वो टू बाई साइट विजन
یا عملی طور پہ اس کو جو ہے وہ اپنانے جا رہے ہیں، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں محترم بشپ وریام صاحب؟ In the name of Father, Son and the Holy Spirit. Amen. Good evening to all. میں یہاں آیا، مجھے بہت اچھا لگا جب میں نے سنا کہ 11 اگست 1947 والی جو ویژن تھی قائد اعظم صاحب کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی بڑی بات کو اپریشیٹ کرنے جا رہا ہے ریزیڈنشیا، اور شہزادہ عالمگیر صاحب نے جو اس ویژن کو اپنایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بے شک یہ خالی قائد اعظم صاحب کا ویژن نہیں بلکہ مساق مدینہ والا ویژن بھی ہے، اور بے شک اور اس وقت یہاں بہت سارے لوگ آئے جن بڑے پاکستان کے نوٹیبل لوگ تھے، اور سب نے اس کو دیکھا، میں نے بھی اس کو بڑا قریب سے دیکھا اور بڑا اچھا لگا، اور میری دعائیں اس سارے پروجیکٹ کے ساتھ ہیں، ساری ٹیم کے ساتھ ہیں، اور مزید ہم اس کو دعاؤں میں رکھیں گے. تھینک یو، گاڈ بلیس یو آل. پلیز ادھر دیکھو، ریکارڈنگ جاری ہے، لائیو جاری ہے. ابھی ہم سائمن روشن سہوترا صاحب جو اس حوالے سے مائنورٹیز کے لیے اس پیس ریزیڈنشیا سٹی کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سائمن روشن سہوترا صاحب، آج جو قائد اعظم کے 11 اگست کی اسپیچ کو لے کے جس ویژن کا اظہار کیا گیا اور اس کو عملی طور پر اپنایا جا رہا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کنٹری وائز کا شکر گزار ہوں، خاص کر احسان بخش جٹ کا جنہوں نے مجھے ٹائم دیا، اور یہ پی سی ہوٹل میں شہزادہ عالمگیر کی کہنے پہ جو سی او ہیں پیس ریزیڈنشیا کے، اور سائمن روشن سہوترا میرا نام ہے، ضلع بیت المال راولپنڈی، اور ان کے کہنے پہ میرے ساتھ 10 پاسٹر صاحبان اور بشپ صاحبان آئے ہیں، اور ہم اس پروجیکٹ کی دعا کو ہے کہ جو ان کا خواب ہے، جس طرح علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور پاکستان بنا، اس طرح یہ جو خواب پیس ریزیڈنشیا ہے، خدا کرے یہ پورا ہو اور ہم سب اس کے ساتھ چلیں. اور قائد اعظم کی جو 11 اگست کی تقریر ہے، یہ تقریر کو کمپلیٹ کرنے جا رہا ہے پیس ریزیڈنشیا. میں شہزادہ عالمگیر صاحب جو کہ سابقہ وفاقی وزیر رہے ہیں اور بھی رہے ہیں، اور ہر بریک نظر ان کے ساتھ ہے، اور یہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں پاسٹر صاحبان ہیں، اور ہم سب ان کے ساتھ چلیں گے. میں شہزادہ عالمگیر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں.